video. You are my friend and I am your friend Ranveer. You are invited by me in this video. I welcome you in this video. So today I will explain you standard 5th community chapter number 1. So without wasting the time, let's get started. Friends, your first chapter is globes and maps. Globes and maps. So first I will explain you the introductory topic of the chapter, which will explain you what you can study in this chapter. Until 1552, until 1522, people were not sure about the shape of the earth. People were not sure about the shape of the earth. They did not knew the shape of the earth. Most of the people thought that the earth was flat. Most of the people thought that the earth was rectangle in shape. They were afraid that they would fall down if they went too far in one direction. उन्हें लगता था कि वो गिर जाएंगे अगर वो एक ही डायरेक्शन में बहुत दूर तक चले गए. We should be grateful of Ferdinand Magellan. हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए. हमें Ferdinand Magellan का शुक्रिया करना चाहिए. Who proved the earth is round? Who proved that the earth is round? Earth is circle in shape. Later, many other astronomers proved that the shape of the earth is round. Many astronomers means who study about the space, who study about the galaxy, prove that the earth is round in shape. Earth shape is in circle. The first main topic is shape of the earth. Magellan was a courageous sailor. He was a courageous sailor. He was a very famous sailor. He led an expedition to prove that the earth is round. He led an expedition. He led means उन्होंने एक एक्सपीडिशन चालू किया ये प्रूव करने के लिए कि अर्थ शेप में राउंड है. In 1519, Magellan sailed from a place called Seville in Spain with 5 ships. He had 5 ships when he started sailing from Seville in Spain. In 1522, one of his ships returned to the same place. In 1522, his one ship of his group returned at the same place in Seville in Spain. This proved that the earth is round. This proved that the earth is round means इसी से पता चला कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड है. The astronauts who have gone to space have also confirmed that the earth is spherical in shape. The astronauts मतलब जो कि अंतरिक्ष में जाते हैं. The astronauts who have gone to space have also confirmed that the earth is spherical in shape. They have also confirmed, they have also told the people that the earth is spherical. Spherical means circle in shape. The earth is circle in shape. The earth is divided into continents and oceans. The earth is divided into continents and oceans. Continents are a huge part of the earth which contains many countries such as Asia. Asia contains India, Bangladesh, China, Myanmar, etc. etc. And ocean is the biggest water source on the world. The extreme north and the extreme south points of the earth are called poles. The extreme means the most highest north and the most highest south point of the earth are called poles. On the earth are known as poles. Their name is poles. These are known as North Pole and South Pole. These are known as North Pole and South Pole. इन्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जाना जाता है. ग्लोब. A globe is an abstract model of the earth. Abstract means
similar, same to same. A globe is an exact model of the earth. ये जो ग्लोब होता है ये अर्थ का सेम टू सेम कॉपी होता है. छोटा करके इसे बनाया जाता है. It represents the earth in a simple and accurate way. It represents the earth. It shows the earth in a simple and very accurate way. मतलब ये हमारे अर्थ को एकदम सिंपल और एकदम एक्यूरेट वे में रिप्रेजेंट करता है. It helps us to see the distribution of continents and oceans on the earth. It helps us to see. It helps मतलब ये हमारी मदद करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट्स ओशंस के बंटवारे में इस ग्लोब पे, इस अर्थ पे. This is called globe. This which image you are seeing on the screen, this is called a globe. Drawbacks of a globe. Drawbacks मतलब disadvantage. We cannot see the details of landforms, location of small towns, etc. on a globe. हम डिटेल में लैंडफॉर्म्स को नहीं देख पाते, स्मॉल टाउन्स के लोकेशन को भी नहीं देख पाते क्योंकि वो छोटे होते हैं और ग्लोब पे नहीं दिख सकते. और एक्सेट्रा ऑन अ ग्लोब वी कैन नॉट सी देम. जैसे आपकी कॉलोनी है वो भी हम ग्लोब पे नहीं देख सकते. वी कैन नॉट सी द एंटायर अर्थ एट अ टाइम ऑन इट. वी कैन नॉट सी द एंटायर अर्थ. हम इस पे पूरा का पूरा अर्थ नहीं देख पाते एक टाइम पे. Larger globes can show some details, but they are difficult to handle. जो बड़े ग्लोब होते हैं, जो लार्जर ग्लोब्स होते हैं, वो लार्जर डिटेल्स बताते तो हैं, पर वो उन्हें हैंडल करना, उन्हें कैरी करना, उन्हें हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. It is also difficult to carry globes around. It is also so tough work to carry the globes around. And changing the page. Oh, this is the wrong page. I will swap the page. I will change the page. If you do not understand, if you do not understand anything, you can comment me in the comment box. I will explain you in community second chapter, standard 5th. First, let's see the do you know. The name Pacific Ocean was given by President Magellan. The Pacific Ocean's name, which we listen, the Pacific Ocean the name was given by Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan has told that the earth shape is round. Maps are drawings of a part or the whole of the earth's surface on a flat surface. जो मैप्स होती हैं वो अर्थ की ड्राइंग होती हैं जो कि पूरे अर्थ को एक सरफेस या फिर एक फ्लैट सरफेस पेपर की तरह पे उसे रिप्रेजेंट करती है. दे में रिप्रेजेंट अ स्मॉल एरिया, अ कंट्री और इन द एंटायर वर्ल्ड. They also show us small area, a country, a continent or the entire world. The maps that depict small areas have greater detail, while the maps which show large areas generally depict only important location or places. जो मैप्स होती हैं वो जो छोटे एरियाज को भी दिखाती हैं वो अधिकतर हर एकदम अच्छे से डिटेल्स में दिखाती है, पर जो मैप्स खाली कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, बड़े बड़े एरिया को ही दिखाती है, वो उसमें ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी. उसमें खाली इम्पोर्टेंट लोकेशन और
प्लेसेस ही आपको देखने को मिलेंगे। A collection of maps bound together in a book form is called an atlas. Atlas is a name of book which is a collection of maps bound together in a book form. एटलस एक किताब है जिसमें हर देश के मैप को एक साथ बाउंड किए, एक साथ उसे इकट्ठा किया गया है। Some maps can be hung on the walls. Some maps are that can be hung on the walls. Hung मतलब उन्हें वॉल पे टांगा जाता है। They are called wall maps. जो कि वॉल पे टांगे जा सकते हैं उन्हें हम वॉल मैप कहते हैं। They are available in many sizes. They are available in size small, big, and many more sizes are available: medium, extra large, small. They are also used in a class to teach students. They are also used in a class. They are also applied in the class to teach students about the earth. Types of maps. Maps are mainly of two types: political and physical. Political means which is used by war in the time of war by the military, and physical which is used by at home by people, by teachers, and by students to understand the earth clearly. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कोई भी वर्ड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं कम्युनिटी 5th स्टैंडर्ड के 2nd चैप्टर में आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन उसका दे दूंगा। द पॉलिटिकल मैप्स डिसेप्ट पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज। जो पॉलिटिकल मैप होते हैं वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बताते हैं एक कंट्री की, एक स्टेट की और एक डिस्ट्रिक्ट यानी जिले की। द फिजिकल मैप्स डिपिक्ट लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। जो फिजिकल मैप होता है वो माउंटेन्स मतलब पहाड़, प्लेन्स मतलब खेती लायक एरिया जहाँ खेती की जाती है, प्लेट्यूज, वैलीज, रिवर्स, सीज एंड ओशंस, etc. etc. Apart from political and physical maps, there are also special maps. इन दोनों को छोड़ के स्पेशल मैप्स भी बनाए जाते हैं। They show rainfall, vegetation, hills and mountains, rivers, oceans, ocean currents, railway, roadways, etc. etc. They show rainfall. वो बारिश के बारे में दिखाते हैं, सब्जी कैसी उग रही है उसके बारे में दिखाते हैं। हिल्स और माउंटेन्स मतलब चट्टान और पहाड़ों के बारे में दिखाते हैं। रिवर्स नदी, ओशंस द लार्ज सोर्स ऑफ ओशन करेंट्स, ओशन में जो करंट होता है उसके बारे में, वो पानी से ही करंट बनता है। रेलवेज मतलब जिसपे रेल चलती है। रोडवेज जिसपे हमारी गाड़ी चलती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। So now it's time to change the picture. It's the next page of your chapter. Signs and symbols is your next topic. It is difficult as well as inconvenient to use the pictures of monuments, rivers, mountains, etc. on the map. ये बहुत टफ पड़ता है कि आप किसी भी मॉन्यूमेंट
मॉन्यूमेंट मतलब किसी की याद में कोई महान जगह, उसको कोई बड़ी जगह, उसको मॉन्यूमेंट कहा जाता है। रिवर नदी, ये तो मैंने आपको बताया, माउंटेन्स भी बताया, एक्सेट्रा ऑन द मैप, एक्सेट्रा यानी कि और भी। उनकी फोटो तो दे नहीं सकते, सो वी यूज साइंस एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट देम ऑन द मैप। so so we use signs and symbols। साइंस एंड सिंबल्स मतलब यहाँ पर वो वाले साइन की बात नहीं चल रही है। साइंस और सिंबल्स मतलब जो वो निशान होते हैं, निशान, उन्हें साइंस एंड सिंबल्स कहा जाता है। प्रतीक भी उन्हें कहा जाता है। These signs and symbols are called the language of maps। ये जो साइंस और सिंबल्स होते हैं, इन्हें मैप का लैंग्वेज कहा जाता है। For example, rivers, roadways, railways, temples and schools are all marked by a sign or symbol on a map। जो स्कूल दिखाया जाता है, जो रेलवे दिखाई जाती है, जो मंदिर दिखाए जाते हैं, जो स्कूल चर्च दिखाए जाते हैं, जो मॉस्क्यू दिखाए जाते हैं, वो सब इन साइंस और सिंबल से ही दिखाए जाते हैं। These signs and symbols are also known as conventional signs and symbols। कन्वेंशन मतलब जिसे लोग मैप बनाने वाले भी अफोर्ड कर सकें, वरना फोटो डालना वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उतना बड़ा मैप नहीं बन पाएगा। मैप कंटेन कीज दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज सिंबल्स। मैप में कीज होती हैं, मैप में क्लूज होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे समझ पाते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मार्क्स कैसे होते हैं दिखने में। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये बाउंड्री जिस लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है, जो ऊपर है, उन्हें हम इंटरनेशनल कहते हैं। जो नीचे है, जो इंटरनेशनल होते हैं, वो ऑरेंज में होते हैं, और डैश, फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, और फिर छोटा डैश। और जो स्टेट की लाइंस होती हैं, वो होती हैं बड़ा डैश डॉट, बड़ा डैश डॉट, बड़ा डैश डॉट। और डिस्ट्रिक्ट की जो लाइन होती है, वो होती है डैश 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 डैश, ऐसी बनाई जाती है। मेटल रोड, जो मेटल वाली रोड होती है, इनमें मेटल लगाया जाता है, वो दो ऑरेंज लाइन से की जाती है। और जो अनमेटल्ड होती हैं, उनको छोटे छोटे डैश से साइड साइड में बॉर्डर दिया जाता है। टाउन्स एंड विलेजेस, अगर कोई टाउन है तो उसे ऊपर दिखाया जाएगा और उसमें 3-4 बिल्डिंग्स दिखा दी जाएंगी, और अगर कोई विलेज है तो उसे सीधे टाउन के नीचे दिखाया जाएगा, जिसमें एक बड़ा सा घर होता है और दो छोटे छोटे घर दिखते हैं। ब्रिज, अगर ब्रिज है तो एक ऐसा लाइन, एक ऐसा, फिर एक ऐसा, और नीचे ऐसा लाइन, फिर एक ऐसा, और फिर एक ऐसा। स्ट्रीम अगर होती है, स्ट्रीम मतलब छोटी छोटी नदियां, तो उन्हें ऐसे 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 करके बनाया जाता है ताकि आदमी उसे लोकेट कर सके, और उन्हें ब्लू कलर में बनाया जाता है। डैम ऐसे ऐसे छोटे 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 मार्क्स को लेके जिगजैग में, जिगजैग आप लोगों को पता ही होगा, ये ऊपर नीचे, वो होता है डैम का मार्क। वेल एंड टैंक, वेल का होता है ब्लैक कलर का एक बड़ा सा डॉट बनाया जाता है, इतना इतना बड़ा, जो आप ऊपर देख रहे हैं। और जो वेल होते हैं, वेल उनका होता है ये, और टैंक जो होते हैं उसमें ऐसे पानी बना होता है, ऐसे 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 करके एक पानी का मॉडल तैयार किया जाता है। रेलवे में एक सीधी लाइन होती है, फिर एक ऐसी 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 करके बहुत सारी लाइन खींची जाती है, जो कि रेलवे को डिफाइन करती है। टेम्पल, टेम्पल में एक घर बनाया जाता है, घर टाइप का, और उसको गोल्डन कलर कर दिया जाता है, बीच में व्हाइट गेट बना दिया जाता है, और ऊपर एक फ्लैग लगाया जाता है, जिसको ऑरेंज कलर में ट्रायंगल शेप में बना के उसे बनाया जाता है। चर्च, चर्च भी सेम होता है, पर इसमें सब साथ ऐसे नहीं होता है। इसमें एक स्क्वायर बनेगा, उसके ऊपर एक ट्रायंगल बनेगा, और उसके ऊपर चर्च का साइन यानी कि क्रॉस बनेगा। मॉस्क्यू, मॉस्क्यू
ये स्क्वायर बनता है, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे लाइन जाती है, दोनों कनेक्ट होके नीचे आती है। Colors on maps. Signs, apart from signs and symbols, apart मतलब signs and symbols के आगे भी different colors are used to represent different landforms. अलग अलग कलर को भी अलग अलग लैंड फॉर्म्स को डिफरेंट रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए इनका यूज होता है। लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज और मैप के ऊपर इन्हें डिफाइन करने के लिए डिफरेंट अलग अलग कलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन ग्रीन। ग्रीन कलर आपको पता होगा, उन्हें ग्रीन में दिखाया जाता है। ग्रीन कलर में अगर कोई प्लेन है जहाँ पर खेती की जा सकती है तो उसको, समझिए मेरा हाथ प्लेन है तो इसको ग्रीन कलर में कलर कर देंगे। और वाटर बॉडीज, मैप में वाटर बॉडीज दिखाने के लिए, डिजर्ट दिखाने के लिए येलो कर देते हैं। अगर मेरा हाथ डिजर्ट है तो इस पे येलो कलर ये लोग लगा देते हैं। और अगर कोई पहाड़ी बड़ी जगह, हिल, चट्टान, पहाड़ ऐसा दिखाने के लिए उसे ब्राउन, जैसे अगर मेरा हाथ ऐसा है और ये पहाड़ है तो इसे ब्राउन कलर कर दिया जाएगा ताकि ये चट्टान या फिर पहाड़ दिखाई दे। और ओशन, अगर मेरा ये अगर मेरा ओशन है तो इसे ब्लू कर दिया जाएगा ताकि ये ओशन लगे। समझ तो आ रहा है ना? नींद तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? नींद आ रही है तो एक सुनो, जैसे अपने से बड़ों को लोग जूनियर कहते हैं और सीनियर कहते हैं, तो मैं आपको सीनियर और जूनियर का आज मतलब बताता हूँ। नियर मतलब पास, सबको पता है नियर मतलब पास। अगर कोई, और समुद्र मतलब सी, अगर कोई सी के पास खड़ा है तो उसे क्या कहेंगे? सीनियर। और अगर जू, जू आप लोग गए होंगे, अगर कोई जू के पास खड़ा है तो उसे क्या कहेंगे? जूनियर। सीनियर, जूनियर। सोइएगा मत। हाँ, सोने से याद आया, अगर आप सो जाएंगे तो आप समझेंगे कैसे? हाँ हाँ, टेल मी। और अगर आप सो गए ना तो जैसे स्कूल खुलेगा सर आपकी बहुत पिटाई करेंगे। आपकी मम्मी भी आपको बहुत मारेंगी क्योंकि आपकी मम्मी स्कूल खुलने का वेट नहीं करेंगी। सोइएगा मत। पीछे देखो, पीछे। Directions play an important role in locating a place on the map. मैप पे लोकेट तो आप कर नहीं सकते कि ये नॉर्थ में है साउथ में है, तो उस समय ये लोग ऐसा डायरेक्शन बना के रखते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा डायरेक्शन को समझने के लिए। अगर कोई ईस्ट में है तो कुछ इस तरह से आएगा क्रॉस, जो आप देख रहे होंगे ईस्ट के लिए। अगर कोई वेस्ट में है तो कुछ इस तरह से क्रॉस आएगा, इस तरह से, और वो ऐसे चला जाएगा। अगर साउथ वेस्ट में है तो ये ऐसे दिखाएगा, साउथ ईस्ट में है तो ये ऐसे दिखाएगा, साउथ में है तो ये ऐसे दिखाएगा, नॉर्थ में है तो ये ऐसे, नॉर्थ वेस्ट में ऐसे, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे। दिख रहा है ना? While locating a place, we sometimes move forward and sometimes backward, and sometimes we move to the left and other times to the right. कभी कभी जब हम मैप पे लोकेट करते डायरेक्शन को तो हम कभी फॉरवर्ड में चले जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं, कभी हम लेफ्ट में मुड़ जाते हैं, कभी हम
राइट में मुड़ जाते हैं, कभी हम ईस्ट में मुड़ जाते हैं और कभी हम वेस्ट में मुड़ जाते हैं. We need to move in correct direction. Directions are very important to study map. डायरेक्शन हमें अच्छे सही डायरेक्शन में हमें जाना होगा. अगर आपको डायरेक्शन समझना नहीं आता तो आपको मैप भी समझना नहीं आएगा. मैं कहाँ हूँ? बताओ बताओ, मैं कहाँ? सोच रहा हूँ पर वीडियो के बाद, अभी नहीं. वरना अभी सोचने लगोगे और मम्मी का बेलन पीछे से आ जाएगा उड़ते उड़ते. मैं अभी कहाँ पढ़ा रहा हूँ बताओ? कहाँ हूँ अभी? मैं कहाँ पहुंचा हूँ बताओ बताओ? वेरी गुड. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस ऑन अ मैप. इस मैप पे 4 मेन डायरेक्शन होते हैं. सब तो मेन डायरेक्शन मतलब जो कि एकदम मेन हो, जो एकदम ज्यादा लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो. पहला तो हो गया नॉर्थ, दूसरा हो गया साउथ, तीसरा हो गया ईस्ट और चौथा हो गया वेस्ट. टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ. अगर कोई चीज एकदम ऊपर है, एकदम टॉप पे है तो उसे नॉर्थ कहेंगे. टॉप मतलब ऊपर. बॉटम ऑफ द मैप इज साउथ. बॉटम मतलब नीचे. टू आवर राइट इज ईस्ट. टू आवर राइट इज ईस्ट. टू आवर लेफ्ट इज वेस्ट. लेफ्ट, राइट. Apart from the main directions, there are 4 sub directions. सब मतलब मेन के बाद वाले. सब मतलब वही होता है कि जो मेन के बाद उन्हीं का इम्पोर्टेंस होता है, सब का. There are 4 sub directions. नॉर्थ ईस्ट, बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट. नॉर्थ अगर यहाँ है और ईस्ट अगर यहाँ है, यहाँ, तो ये जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो ये जगह बच रही है, ये और इसके बीच में, ये और इसके बीच में जो ये साइड जाता है, ये इसके बीच में जो जगह बचती है उसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो जगह बचती है, नॉर्थ और ये वेस्ट. वेस्ट. इन दोनों के बीच में जो जगह बचती है नॉर्थ और वेस्ट के, उसे हम कहते हैं, नहीं बताऊंगा, चलो बता देता हूँ, नॉर्थ वेस्ट. साउथ और वेस्ट के बीच में जो जगह बचती है उसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट. साउथ और ईस्ट के बीच में जो जगह बचती है वो मैं नहीं बताऊंगा. आगे का चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बोर हो रहा हूँ. लग रहा है मैं ऐसा बोलूंगा? बिल्कुल नहीं, अभी और पढ़ाऊंगा. समझे? तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना और सब अच्छे से समझते रहना. साउथ और ईस्ट के बीच में जगह आती है उसे साउथ ईस्ट कहते हैं. नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जगह आती है उसे नॉर्थ ईस्ट. सब तो आपको समझा दिया. ओह, नेक्स्ट पेज खुल गया तो मुझे ही पेज खोल के रखना था. कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग? देख लो. लुक एट अ मैप केयरफुली. आप एक मैप को अगर ध्यान से देखें, आप एक छोटा सा रूलर, रूलर मतलब स्केल, स्केल जैसा एक सिंबल देखते होंगे. इसे मैप की भाषा में भी स्केल ही कहा जाता है. Why do we use scale on a map? ये
पता नहीं, ये पता करना बहुत मुश्किल है कि ये असली में डिस्टेंस कितना है एक मैप के बीच में, एक जगह से दूसरी जगह के बीच में जितना डिस्टेंस है, जैसे ये जगह है और एक ये जगह है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, अगर ये मैप पे है, मैप पे, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग रूलर स्केल का यूज करते हैं। Therefore, they are represented by a smaller unit on the map. इसीलिए उन्हें एक छोटे से यूनिट में, जैसे अगर ये डिस्टेंस है तो इतनी सी जगह में ये इतने में आएगा, ये पूरे में जो ये आप लाइन देख रहे हैं मेरे हाथ की, इतना ही बड़ा वो आएगा। A scale is the ratio between the distance on the map and the real distance on the ground. जो स्केल होता है, जैसे ये है महाराष्ट्र, ये है उत्तर प्रदेश, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस आ रहा है, इसी को क्लियर करने के लिए, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए स्केल का यूज किया जाता है। द स्केल इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन the Maharashtra and UP, the Maharashtra and Punjab, etc., etc. Many states are there, even many countries are also there in this. This is a scale 0, 1 mile, 1 mile, 2 mile, 3 mile and 4 mile. आपको पता है ये माइल्स कितना होता है? 2 किलोमीटर के बराबर की एक जगह को कहते हैं माइल। लॉन्ग एगो, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ये आपका आज का क्वेश्चन है। लॉन्ग एगो पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। इफ द अर्थ वाज रियली फ्लैट व्हाट डिफिकल्टीज वुड पीपल हैव फेस्ड। आपको मैंने चैप्टर्स पर समझाया है, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मुझे कमेंट पक्का चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए कमेंट, मुझे कल परसों तक कमेंट आ जाना चाहिए कि जब बहुत पहले अगर पीपल बिलीव करते थे कि अर्थ एक बहुत फ्लैट है, अर्थ एकदम चपटी है, तो उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो तो बिलीव करते थे, और जो बिलीव करते थे वो उनको सच लगता था, तो उनको उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी। if you have any if you have to trace the location of your city or village, what would you like to use, a globe or a map? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अगर आपको अपने सिटी और विलेज का लोकेशन देखना है तो आप किसे यूज करेंगे, ग्लोब या मैप को? ये मैंने अभी आपको समझाया था, ये आपको आना चाहिए और मुझे कमेंट चाहिए। जिसका कमेंट राइट होगा, जिसका कमेंट सही होगा, मैं उसका नाम यहाँ पर लूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। अब मैं इसे रीसेट कर देता हूँ क्योंकि आपका जूम करके अब हमारा काम खत्म हो गया है। अब हम एक्टिविटी कॉलम पे जंप करेंगे। सो फर्स्ट हमारी एक्टिविटी होगी टिक द करेंट आंसर। आवर अर्थ इज डैश डैश इन शेप, राउंड। The great sailor dash dash undertook a sea voyage to prove that the earth is round. What should be the answer of this question? What do you think? You have time of 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now I will tell you the answer. It is Magellan. If I said Magellan, you are right. Pictures of the earth taken from the dash dash have proved that the earth is spherical in shape. Give me the answer in 10 seconds. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The answer will the space. Dash dash is not the main direction. Use the map. Your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. It will be the northwest. There are dash dash subdirections. Time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. It will be 4. Check your answer. We did it. The answer is well done. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें ताकि मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में आप ही के सब्जेक्ट के दे दूं। अच्छा चलिए बताइए ये पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। Ferdinand Magellan. Time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bah! Your time overs. It should be famous sailor. Signs and symbols. 10. Time starts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Your time ends now. Language of the map. Model of the earth. Where it should go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. It should be on the globe. Represented in brown color. What should be its answer? Tell me in 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, tick tick 2, tick tick 1, tick tick 0. It will be Atlas. I will not give you the challenge of this question because it's the last option here. We did it. So friends, this was our today's video. This is the end of our video. For viewing more videos of your subject, your class, your standard, if you are standard 5, standard 6, standard 7, to view your all videos, subscribe to my channel because I will add more videos like this. Till then, bye.